हाँ, तो today we are going to start a new chapter, that is alcohol, phenol and ether. You have learned that substitution of one or more hydrogen atom from a hydrocarbon by another atom or group of atom result in the formation of entirely new compound having altogether different properties and applications. Alcohol and phenols are formed when a hydrogen atom in a hydrocarbon, aliphatic या aromatic respectively, is replaced by OH group. These classes of compound find wide application in the industry as well as in day-to-day life. For instance, have you ever noticed that ordinary spirit used for polishing wooden furniture is chiefly a compound जो कि containing hydroxyl group यानी कि ethanol. The sugar we eat, the cotton used for the fabrics, the paper we use for writing, all are made up of the compounds containing OH group. Just think of a life without paper. No notebooks, no books, newspaper, currency notes, check, certificate, etc. The magazines carrying beautiful photographs and the interesting stories would disappear from your life. It would have been really a difficult world. An alcohol जो होता है कंटेन करता है one or more hydroxyl group directly attached to the carbon atom of a aliphatic system, while phenol contain OH group directly attached to the carbon atom of a aromatic system, जैसे कि C6H5OH. The substitution of a hydrogen atom in a hydrocarbon by an alkoxy or allyloxy group यानी कि RO या ARO ग्रुप yield another class of compounds known as ether. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अगर हम हाइड्रोजन एटम के हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम को हम एल्कोक्सी या एराइलोक्सी ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो वो अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल CH3OCH3 ये क्या है, डाईमिथाइल ईथर है. यू मे ऑल्सो विजुलाइज ईथर एज अ कंपाउंड जो कि फॉर्म्ड होते हैं बाय सब्सटीट्यूटिंग hydrogen atom of the hydroxyl group of an alcohol or phenol by an alkyl or allyl group. In this unit, we shall discuss the chemistry of the three classes of compounds, namely alcohol, phenol and ether. Now, we are going to deal with the classification. The classification of compound makes their study systematic and hence simpler. Therefore, let us first learn how are alcohol, phenol and ether classified. सबसे पहले है एल्कोहल्स को जो है वो क्लासीफाई किया जाता है इनटू मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स. एल्कोहल एंड फिनोल में बी क्लासिफाइड एज मोनो, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2, 3 और या फिर मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर एज गिवन बिलो. ठीक है, तो जैसे C2H5OH एक मोनोहाइड्रिक होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है. CH2OH ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है. ऐसे ही CH2OH, CH2OH ये ट्राईहाइड्रिक है. मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल होता है मे बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड. ठीक है, सबसे पहला है जो कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड. इन दिस क्लास ऑफ एल्कोहल द OH group is attached to an sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group. They are further classified as follows: primary, secondary and tertiary alcohol. In these three types of alcohol, the OH group is attached to primary, secondary and tertiary carbon atom respectively as depicted below. ठीक है, जैसे CH2OH ये प्राइमरी है. अगर मान लो ऐसे कार्बन देखो यहाँ पे जो कार्बन है सेकेंडरी वाले में, यहाँ पे ये कार्बन 2 कार्बन से आगे और जुड़ी हुई है इसलिए इसको सेकेंडरी बोलते हैं. अब टर्शरी में देखो ये OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो आगे 3 कार्बन से जुड़ी हुई है. ठीक है, इसलिए टर्शरी बोलते हैं. एलाइलिक एल्कोहल की बात करें, इन दीज एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज टू एन एलाइलिक कार्बन. जैसे कि प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी अभी ये प्राइमरी एलाइलिक भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इस पे डिपेंड करेगा कि वो sp3 कार्बन कैसा है. ठीक है, और एलाइलिक क्योंकि उसके sp3 के कार्बन के जो नेक्स्ट है वो डबल बॉन्ड है इसलिए. ठीक है, जैसे कि प्राइमरी में देखो यहाँ पे जो CH2 से अटैच है वो सिर्फ एक तरफ OH से, एक तरफ जो है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से और बाकी 2 हाइड्रोजन है इसलिए प्राइमरी. सेकेंडरी में देखो, सेकेंडरी में क्या है कि ये जो है एक और कार्बन से अटैच है, टर्शरी में 2 कार्बन से और अटैच है इसलिए. नेक्स्ट है बेंजाइलिक एल्कोहल.
इन दिस एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच टू। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग जो है बेंजालिक अल्कोहल के बारे में डील करने वाले थे। बेंजालिक अल्कोहल, इन दिस अल्कोहल द OH ग्रुप जो होता है अटैच्ड होता है व्हेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये बेंजीन है, इसके आगे जो है नेक्स्ट जो CH2 कार्बन है वहाँ पे जो है क्या आ रखा है, देखो यहाँ पे जो है ये वाला, यहाँ पे क्या आ रहा है OH आ रहा है, ठीक है। इसमें अगर मान लो ये कार्बन, यहाँ कार्बन दो है, दो यहाँ पे हाइड्रोजन से अटैच है, अगर ये एक कार्बन से अटैच होगा तो ये सेकेंडरी कार्बन बन जाएगा, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी बेंजालिक अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे अगर दो कार्बन से अटैच हो जाएगा तो ये टर्शरी क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा, टर्शरी बेंजालिक अल्कोहल बन जाएगा। एलाइलिक और बेंजालिक अल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड जो कि कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड, ठीक है। These alcohol contain OH group bonded to a carbon-carbon double bond, that is to a vinylic carbon or to an allylic carbon. These alcohol are also known as vinylic alcohols. जैसे कि हम बात करें विनाइलिक अल्कोहल में, जैसे कि ये देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है, ये क्या है, एक विनाइलिक अल्कोहल है। जैसे कि बेंजीन से OH जो लगा हुआ है ये भी क्या है, एक विनाइलिक है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे जो है मोनो, यहाँ पे हम CH2, यहाँ पे CH2 ये भी मोनोहाइड्रिक है, पर यहाँ पे जो है एक CH3 बॉन्ड मिथाइल ग्रुप और जोड़ दिया। यहाँ पे दो OH बॉन्ड प्रेजेंट है, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए डाइहाइड्रिक बोलते हैं। यहाँ पे तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए ट्राइहाइड्रिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारा फिनोल का जो है हमारा क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट है हमारा ईथर का क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है। अब जो है ईथर जो होते हैं क्लासिफाइड होते हैं एज सिंपल और एसिमेट्रिकल, ठीक है। क्लासिफाइड होता है सिंपल और एसिमेट्रिकल में। इफ़ द एल्काइल और एलाइल ग्रुप जो होता है अटैच टू द ऑक्सीजन एटम, वो अगर वो सेम है तो हम उनको सिंपल या क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कब बोलेंगे, इफ़ द टू ग्रुप आर डिफरेंट होंगे, तो उसको जैसे कि हम बात करें डाइथाइल ईथर जो एक सिमेट्रिकल ईथर है, जबकि अगर C2H5O CH3 की बात करें या फिर C2H5O C6H5 की बात करें तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर्स है, ठीक है। हम लोग जो है नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है, इसमें बोल रखा है कि यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल चेक करो। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में जो है जिस कार्बन से अटैच है वो क्या है, प्राइमरी है, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। इसके नेक्स्ट वाले में देखने जिस कार्बन से हाइड्रोजन मतलब OH ग्रुप जो प्रेजेंट है वो कार्बन देखना है बस, क्योंकि ये एक तरफ से एक ही कार्बन से अटैच है तो इसलिए इसको प्राइमरी बोलेंगे। इधर भी देखो ये कहाँ से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है इसलिए प्राइमरी, यहाँ भी एक कार्बन से अटैच है प्राइमरी। यहाँ देखो एक तरफ बेंजीन से अटैच है, एक तरफ दूसरे CH3 से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। ये भी सेकेंडरी हो जाएगा, ये टर्शियरी हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 2 3 तीन कार्बन से अटैच है, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करो एलाइलिक अल्कोहल इन द अबव एग्जांपल। तो एलाइलिक का मतलब क्या होता है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, जो डायरेक्टली जो है एलाइलिक का मतलब होता है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है उस पर जो अगर OH बॉन्ड लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक। डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन होता है अगर उस पर OH लगा हो तो उसको बोलते हैं एलाइलिक। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसे नेक्स्ट वाला कार्बन ये वाला है, इसे OH लगा हुआ यानी विनाइलिक। यहाँ पे देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है पर ये डायरेक्टली ये कार्बन जो है क्या है, ये फिनोल है। फिनोल की बात नहीं कर रहे हम लोग, फिनोल अलग ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, इसे नेक्स्ट वाला कार्बन ये रहा, ठीक है, इसे OH अटैच है, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, विनाइलिक होगा। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो है हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर में अल्कोहल का देखते हैं। द कॉमन नेम ऑफ द अल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप एंड एडिंग द वर्ड अल्कोहल टू इट। फॉर एग्जाम्पल CH3OH को बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। According to the IUPAC system, the name of the alcohol is derived from the name of the alkane from which the alcohol is derived by substituting E of the alkane with the suffix O, L, ठीक है।
द पोजिशन ऑफ द सब्सिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय न्यूमरल्स, ठीक है। फॉर दिस द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि पेन चेन जो होता है वो नंबर की जाती है स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो नियरेस्ट कार्बन है, नियरेस्ट मतलब नियरेस्ट से जो है हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। द पोजिशन ऑफ द OH ग्रुप एंड द अदर सब्सिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द कार्बन एटम टू विच दीज आर अटैच्ड। For naming polyhydric alcohol, the E of the alkane is retained and the ending OL is added. The number of OH group is indicated by adding the multiplicative prefix di, tri, etc. before the OL. ठीक है। The position of the OH group are indicated by approximate locants, जैसे कि हम बात करें OH CH2 CH2 OH है, इसका नाम होगा इथेन 1,2 डाइओल, ठीक है। यहाँ पे IUPAC सिस्टम दे रखा है कुछ, ठीक है। तो अब आगे नोमेनक्लेचर की जो है टेबल दे रखी है, उसमें सब नॉर्मल वाले दे रखे हैं। बस मेन जो है एक ये वाला देखो, इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, क्योंकि आइसो ग्रुप किसको बोलते हैं, जब CH3 CH और यहाँ पे CH3 वापस लगाओ और यहाँ पे डैश लगाओ, तो देखो अगर इसको आप तोड़ोगे तो वो ऐसा ही बनेगा, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है। और नेक्स्ट अगर और कंपाउंड की बात करें तो इसको बोलते हैं OH, इस कंपाउंड को OH, जो ये वाला कंपाउंड है OH CH2 CH2 OH, और इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका कॉमन नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। नेक्स्ट अगर CH2 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 अगर तीनों पे OH OH बॉन्ड में लगाओ तो इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल, क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल, ठीक है। ये हमने उसमें भी पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स में भी, ठीक है। सिंपल लिपिड होता है ग्लिसरॉल जो होता है, ये वाले सिंपल लिपिड होता है, ठीक है। बाकी सब जो है वो नॉर्मल दे रखे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है साइक्लिक अल्कोहल जो होते हैं वो नेम्ड होते हैं यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो एंड कंसिडरिंग द OH ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन नंबर 1 पे मानते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं साइक्लिक हेक्सानोल, ठीक है। इसको बोलते हैं साइक्लिक 2 मिथाइल साइक्लोपेंटानोल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम जो है नेम में बात कर रहे हैं किसकी, फिनोल की, ठीक है। द सिंपलेक्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ द बेंजीन इज़ फिनोल, सिंपलेक्स जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है बेंजीन का वो कौन होता है, फिनोल होता है। इट इज़ इट्स कॉमन नेम एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड IUPAC नेम होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द फिनोल इन्वॉल्व्स ऑफ बेंजीन रिंग इन इट्स सब्सिट्यूटेड कंपाउंड्स द टर्म ऑर्थो, यानी कि 1,2 डाइसब्सिट्यूटेड, मेटा 1,3 डाइसब्सिट्यूटेड एंड पैरा 1,4 डाइसब्सिट्यूटेड जो होता है ओपन यूज़ किया जाता है एज अ कॉमन नेम, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बात करें हम लोग फिर इसको बोलते हैं फिनोल, कॉमन नाम भी फिनोल है और IUPAC नेम भी फिनोल है, ठीक है। इसको बोले CH3 अगर OH लगाओ तो इसको कॉमन नेम होता है ऑर्थोक्रिजोल बोलते हैं, और IUPAC नेम की बात करें तो इसको बोलते हैं 2 मिथाइल फिनोल, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे मान लो मेटा पे लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं मेटाक्रिजोल, और इसको बोलते हैं 3 मिथाइल फिनोल। अगर ये पैरा पे लगा हुआ तो पैराक्रिजोल और 4 मिथाइल फिनोल, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन की बात करें तो अगर यहाँ पे OH लगा हुआ है तो कॉमन नाम इसका 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका नाम होता है, अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए तो इसको कैटाकोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटाकोल बोलते हैं। अगर 1 और 3 पे लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं रिजोसिनोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिजोसिनोल। और अगर जो है 1 और 4 पे लगा हुआ तो इसको हाइड्रोक्विनोन या क्यूनोल बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन और हाइड्रोक्विनोन या फिर क्यूनोल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो टेबल की बात करें, यहाँ पे टेबल दे रखा है ईथर के नाम का, ठीक है। सबसे पहले हम ईथर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कॉमन नेम ऑफ ईथर जो होता है डिराइव किया जाता है फ्रॉम द नेम ऑफ एल्काइल या एल ग्रुप रिटन एज सेपरेट वर्ड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड एडिंग द वर्ड ईथर एट द एंड। फॉर एग्जांपल CH3O C2H5 को बोलते हैं इथाइल मिथाइल ईथर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम किसका बात करें, कॉमन नेम की बात करें, ठीक है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट वाले की बात करते हैं तो CH3O CH3 होगा। अगर IUPAC नेम लिख रहे हैं तो जो छोटा वाला कार्बन चेन होता है उसको हम ऑक्सी लिखते हैं और बड़े वाले को एन लिखते हैं। और अगर हम कॉमन नेम लिख रहे हैं तो दोनों में आइल यूज़ करते हैं, जैसे कि इसको डाईमिथाइल ईथर बोलते हैं। और अगर वैसे IUPAC बोलेंगे तो मिथोक्सी मीथेन बोलते हैं, ठीक है, मिथोक्सी मीथेन, ठीक है। बाकी सारे नॉर्मल है। जैसे कि एक इसमें बात करें जिसमें कार्बन नंबर डिफरेंस है, देखो इसमें CH3 जो होता है वो छोटा है तो इसको IUPAC नेम आएगा मिथोक्सी प्रोपेन। अगर इसका कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम आएगा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर बोलेंगे, ठीक है।